प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहे आमीन। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। जिस तरह आपने वर्शिप की आत्मा में रहते हुए, तो आइए हम बैठ के परमेश्वर की महिमा के लिए टेस्टमनी को सुनेंगे। और टेस्टमनीज आज जब आप सुनेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। तो सब जन बैठ जाएं, आइए हम सब मिलकर उस गवाही को देखते हैं। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਛਾਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਾਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਘਰੇ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਟਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ UK ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਛਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਇਨ-ਲॉज ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਣ।
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਉੱਠੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। आप जहां भी हैं, आप जहां भी बीमार हैं, राइट नाउ अपने हाथों को वहां रखो, उस ऑयल को लगाओ और मैं कमांड करता हूं हीलिंग, डिलीवरेंस आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੀ MRI ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਆ, ਇਹਦੀ CT ਸਕੈਨ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सारे जय मसीह। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उस भाई को नशों से, उस पुरानी जिंदगी से आजाद करके परमेश्वर ने नया जीवन दिया है। तो सब इस तरह से बैठे रहें और टेस्टमनीज हमारे बीच में पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ इन टेस्टमनीज को सुने। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जय मसीह की। मैं करनाल से हूँ, जो अंकुर नूला मिनिस्ट्री के नाम से करनाल में। आपका नाम क्या है ब्रदर? मेरा नाम सचिन है। ओके, 4 साल पहले आपने नशे करने शुरू कर दिए? हाँ जी। ओके, कैसे शुरुआत हुई थी नशे में? आपका जीवन कैसे गया? क्या क्या नशा करते थे आप? शुरुआत ये हुई थी जी, मेरे पास जब मैं 4-5 साल पहले था तो मैं कुछ और चीज़ों में था, तो मैं सारी गलत संगति में आ गया था। तो मेरा घर भी बिक गया था और मेरे पापा मम्मी सब परेशान हो गए थे। और मैं परमेश्वर में था मैं उस टाइम, लेकिन मैं जीवित चर्च में नहीं था। तो आप क्या क्या नशा करते थे उस समय? नशा करता था मैं, दारू बहुत पीता था, अपनी मिसेज को मारता था, अपने बच्चों को मारता था, जुआ के और
सट्टे दारू पीता था, भूखी भी, सब नशे करता था। मतलब कि मेरे जीवन में इतना बेसलाइट हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मेरे को एक भाई मिला। और इस नशे में, जुए में लाखों रुपए आप खराब कर चुके थे। 8-9 लाख रुपए नाश कर दिए जी मैंने। मैं बिल्कुल वेस्टिजन में आ गया था और मरने चला गया था मैं। कितने साल आपने नशा किया लगातार? मैंने 6-7 साल फुल नशा किया पूरा, सब अपनी लाइफ में जो होता है, छोटे से लेके बड़े तक नशा किया मैंने सब। आपके परिवार वाले जानते थे कि आप नशा करते हैं? हाँ जी, सब जानते थे। मेरे को छोड़ दिया था मेरे घर को ने, नुका जा। आज भी मैं किराए पे हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ब्लेस करा हुआ है मेरे को। ओके, जब आपके नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, घर का सामान आपने बेच दिया था। सारा जो मेरी मिसेस सामान लेकर आई थी, वो सब मैंने 20,000 में बेच दिया था। घर का सारा जो फर्नीचर, बेड था, फ्रिज, सोफा था, टीवी, सब जो बेच कुछ दिया था, और लाखों रुपए का गोल्ड था आपके पास, वो भी बेच दिया। वो भी सब बिक गया था, क्योंकि लत इतनी बुरी लग चुकी थी, बहुत ज्यादा। जुओं की लत बहुत ज्यादा लग चुकी थी। करियाने की आपकी दुकान थी, वो भी आपने बेच दी नशे वो में। भी सब बिक गई जी। और जब नशा इस भाई का इतना ज्यादा बढ़ चुका था और पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे, आपको फिर यहाँ का अंकुलम मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? जैसे करनाल में अंकुलम मिनिस्ट्री के नाम से ब्रांच खुली करनाल के अंदर, तो मेरे को एक भाई मिला। उसी हफ्ते मैं करनाल में गोल्ड रखने के लिए गया था दोबारा से मुथुड़ के अंदर। तो मेरे को भाई बोला, सचिन भाई तेरे को गोल्ड नहीं रखना। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा मेरे को पता है भाई, तू पैरालाइज हो गया था, तू एक फिर दोबारा चर्च में आ। तो मैं वो गोल्ड अपना वापसी लेके मैं गया। मेरे रात पे फाइनेंस वाले मेरे घर पे आ गए, मेरे गला पकड़ा, बहुत पकड़ा। मगर भाई मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तो मैं परमेश्वर के भवन में संडे को गया। तो मैं जैसे संडे में गया, मेरा ऐसा हील हुआ, मेरे को नहीं पता मेरा जीवन कैसे बदला। तो मैं जैसे रात को आया, मेरे घर पे दारू की बोतल रखी थी, तो मैं पीने के लिए गिलास में डाली परमेश्वर के भवन में से आके। तो मैंने कहा मैं पीऊंगा। मेरी घरवाली रोने लगी। नुका नहीं, नुका तुम परमेश्वर के भवन में से आए, दारू मत पियो। नुका परमेश्वर का मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं दारू पीऊंगा। तो मेरी घरवाली ने गुस्से में डाल के वो गिलास में डाल के दी, और जैसे मैंने होठ पे लगाई तो मैं अपने आप ही गिर गया खाट पे से। तो मेरे चीज ऐसी चीज गई मेरे अंदर से निकल के। आज से लेके वो दिन मेरे अंदर है जो मैंने अभी तक किसी चीज की लत नहीं करी। कोई मैं नशा नहीं किया उसके बाद आपने? एक भी चीज की लत का कोई भी वो मेरे अंदर नहीं है। आप परमेश्वर ने मेरे को इतने बड़े बड़े काम से ब्लेस किया। मेरी गाड़ी भी आ गई, एक गाड़ी नहीं है, 4 गाड़ी मेरे को परमेश्वर ने दी। 4 गाड़ी में ब्लेस करा हुआ। कोई नशा नहीं है, कोई मतलब कि कोई कुछ भी नहीं, नशा नहीं है। जो कुछ आपने नशे परिवार मेरे में, साथ- जो कुछ आपने नशे में बेच दिया था, वो सारा कुछ वापस आ चुका था। सारा कुछ मेरा वापसी आ गया है। बस एक मेरा मकान रह गया है, जो वो भी परमेश्वर तारीफ करें, मुझे क्योंकि अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर जो नशों से आजाद कर सकता है, बीमारियों से आजाद कर सकता है, आपको पाप भरे जीवन से आजाद कर सकता है, वो आपको फाइनेंशियली भी ब्लेस करेगा और आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलें इस गवाही के लिए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आज जितने जन यहाँ पे मौजूद ऐसे हैं जो नशा करते हैं, या आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपके परिवार में कोई नशा करता है, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आजादी देने वाला परमेश्वर है, उसका आत्मा आजाद करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आपका भरोसा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है, तो आज जब प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करके वापस जाओगे, आप वापस आओगे अपनी बड़ी गवाही के साथ यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तालियां बजाते हुए खुदावंद यीशु मसीह का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशीला है। मैं राजस्थान से आई हूँ, खैरतल से। और मेरी टेस्ट मनी है कि मुझे 11 फरवरी को पैरालाइज हो गया था। तो उसके बाद में
मैं बिल्कुल बेहोश हो गई। मेरा फेस भी टेढ़ा हो गया और मेरा सारा शरीर सुन्न हो गया। मैं नहीं चल पा रही थी, नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद में मेरा परिवार सारा घबरा गया था, पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद में 4 डॉक्टर चेंज किए थे। पहले डॉक्टर के पास गए, 1 हफ्ते की दवाई दी, लेकिन उसने कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद में दूसरे के पास गए, उसने कहा एडमिट करवा दो, ऑपरेशन होएगा, तो नहीं करवाया ऑपरेशन। उसके बाद में तीसरे के पास गए, तो उसने कहा था कि 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकती है। उसके बाद चौथे के पास गए, तो उसने कहा हो जाएगी, इसका नस भी लोग हो गई है और इसके 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हो जाएगी ठीक। तो मैंने सोचा हो जाऊंगी, चलो डॉक्टर कह रहे क्योंकि थे। जब टेस्ट हुए तो पता चला था कि आपके ब्रेन की नसें ब्लॉक हो चुकी है पूरी तरह से। हाँ जी, मेरी पूरी एक लेफ्ट साइड की बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। मैं नहीं चल पा रही थी, नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद में आप उस समय पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? हाँ जी, पूरी तरीके से बेड के ऊपर थी। चल फिर नहीं पाते थे आप हाँ उस जी, समय? मेरे बच्चे मुझे उठाते थे, टॉयलेट बाथरूम करवाते थे, गोदी में उठा उठा के। और आप उस समय अपने आप को देखकर हमेशा रोते थे? हाँ जी। क्या मन में आता था कि आप ब्रदर, बहुत मन में आता था। लोग बाग कहते थे कि पैरालाइज का ठीक नहीं होता है, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे ठीक करेगा। क्योंकि उस समय ना तो आप बोल पाते थे, ना कुछ खा पाते थे, ना हाँ ही जी, चल कुछ पाते नहीं थे। खा पाती थी, सिर्फ Just पर बेड के ऊपर ऐसे लेटे हाँ पड़े जी, रहते सीधा थे। बेड के ऊपर लेटी थी। क्योंकि दवाइयां खा के आप थक चुके थे, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुका था। उसके बाद और में फिर कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी आपको? उसके बाद में 18 फरवरी को मेरा ली हैंड हुआ जूम ऐप पर। पापा जी ने मेरा ली हैंड किया था कि सुशीला तू पहले जैसे कामों को करेगी। ओके, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। 18 फरवरी 2026 की मीटिंग को अटेंड किया। उसमें इनके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। Sushila paralyzed in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में ताकत तेरी बॉडी के अंदर जाए अभी। सुशीला, यीशु मसीह का आत्मा तुझे छुए। बीमारियां छोड़ जाती। ऑयल ले लो अपने हाथों में सुशीला। इन जीसस नेम बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। तेरी बॉडी ताकत को ग्रहण करे। तू चले, तू फिरे, तू चले और तू फिरे और सब काम करने पाए। खुदाबंद तुझे उठाकर खड़ा करे। मुर्दा अंग जी उठे। मेरे यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। ऊंचा, आमीन, ऊंचा। मैंने कहा खुदाबंद की ब्लेसिंग आप पर। करो सुशीला, जो नहीं कर सकती करो। उठो, जो नहीं कर सकती उसे करो। खुदाबंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है और हील कर रहा है। थैंक यू जीसस। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई तो परमेश्वर के दास ने आपका नाम लेकर आपके उसके लिए बाद prayer में की। मेरे शरीर में गर्माहट सी फील हुई थी और मैंने उठने की कोशिश करी और मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगी, तो लेकिन नहीं चल पा रही थी। लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे पापा जी ने मुझे ली हैंड किया है, तो मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी। मुझे पूरा विश्वास था। उसके बाद मैं रोज थोड़ा थोड़ा चलती थी, कोशिश करती थी उठने की, गिरती थी, उठती थी, पड़ती थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने आज मुझे ठीक कर दिया, चंगा कर दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है तो आपको भी ठीक कर सकता है। हालेलुया परमेश्वर। और अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक हैं आप? मुझे 2.5 महीना हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो डॉक्टर ने बोला था कि आपके ब्रेन का ऑपरेशन होना है, हाँ जी, डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होएगा, लेकिन नहीं कराया। मुझे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर ही मुझे ठीक करेगा। ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है आपका हाँ भी। जी। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के क्योंकि नाम को, जिंदा महिमा दें। खुदा है डेथ बेड से खुदावन ने उठा के खड़ा किया। खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, खुदा है हमारा। ए यहोवा मेरे बादशाह, हमद तेरी करूं। ए यहोवा मेरे बादशाह, हमद मैं तेरी करूं। तू है परस्तिश के काबिल खुदा, हमद मैं तेरी करूं। और आज ये बहन पूरी रीति के साथ हील है, आपके बीच में खड़े हैं।
एक टाइम था जब डेथ बेड के ऊपर पड़े हुए थे, तो आज जितने भी जन ऐसे हैं या आप हीलिंग हॉल में मौजूद हैं या ब्रांचेस में आप हैं, आप चल नहीं पाते हैं या छड़ियों शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज जब आप प्रार्थना को ग्रहण करोगे, आज वो बीमारी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो चलते नहीं है, आज आप चल के वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, तालियां बजाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। मौजूदा 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 होता है ये सुना, कुदरत है उसी के कलाम में मौजूदा। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजित कौर है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जिला संगरूर की रहने वाली हूँ। मार्च 2024 में आपको गले का एक रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। ओके, स्टार्टिंग से क्या प्रॉब्लम थी, कैसे ये रोग बढ़ा, आप खुल के बताएं प्लीज। ब्रदर मेरे गले में ना हल्की सी पहले इन्फेक्शन हुई थी, तब मैंने सोचा कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, चलो वो धीरे धीरे वो बढ़ती गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना, बहुत ही ज़्यादा, मुझे सहने से बाहर इतना ज़्यादा दर्द होने लगा। मैंने डॉक्टर से दवाई ली, लेकिन डॉक्टर ने मुझे दवाई दे रहे थे और इंजेक्शन लगवा रहे थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने लगातार दवाई खाते कि मैं दूसरा डॉक्टर चेंज किया, उस डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, दवाई देने के बाद मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे इतनी ज़्यादा सहने से बाहर होता था दर्द कि मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती। जो मैं कुछ खाती थी ना, मेरे गले में दर्द होने लग जाता था। पानी भी पीती थी, पानी पीने से भी दर्द होता था, बस मैं ज़्यादातर लिक्विड ही लेती थी। मुझे कोई इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता था ना, मैं सोचती थी मुझे पता नहीं क्या बीमारी लग जाएगी। जो मैं अगर मैं सोचती थी दिन रात, बस दिमाग में यही रहता था। मुझको रात को नींद नहीं आती, सोती थी नहीं, मैं रात को जाग जाग के बस अब यही रोती रहती, सोचती रहती थी मुझे पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज ही नहीं हैगा। मैं इतनी ज़्यादा दिमाग में अपसेट हो रही थी, मुझे ना किसी से बुलाना पसंद था, ना मुझे कुछ खाना, मुझे दिल ही नहीं करता था। ऐसा लगता था ना मैं आज अगर मैं सोऊंगी ना मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी ना, जीभ तक में जलन होती थी, इतनी ज़्यादा जलन होती थी ना, मुझे कुछ चीज़ का स्वाद ही नहीं नजर आता। ऐसे लगता था कुछ खाऊं ना, दिल ही नहीं करता ना कुछ खाने को ना पीने, कुछ भी ऐसा हो रहा था। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे आपको चंगाई दी, कैसे हील हुए आप? ब्रदर मैं 2014 से ना कामरा चर्च से जुड़ी हुई हूँ। मुझे विश्वास था जब ये लोग इतने हील हो सकते तो मैं क्यों नहीं हो सकती। परमेश्वर मुझे भी गवाही के साथ मैं इतनी बड़ी टेस्टमनी होती, जिस तरह लोग अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, तो मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तो छोटी सी है। जब कैंसर वर्ग की बीमारी से लोग हील हो सकते हैं, एड्स वर्ग की बीमारी से लोग हील हो सकते हैं, सोराइसिस वर्ग की बीमारी से हील हो सकते हैं, जिनका लोग इलाज डॉक्टरों के पास तक जवाब है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है। मैं हील क्यों नहीं होंगी? मैं हील होंगी, परमेश्वर मुझे हील करेगा। मैंने विश्वास किया और प्रार्थना में लगातार बनी रही और यहाँ पर चर्च में आती रही। मैं हर संडे को मीटिंग अटेंड करती थी और हीलिंग हॉल में बैठी थी, प्रे कर रही थी, परमेश्वर आज तेरे दास के द्वारा तुम मेरे साथ बात कर, मुझे हील कर, क्योंकि आज मेरी गवाही का दिन है। मैं इसमें से पुल पर से गवाही लेकर ही जाऊंगी। मैं सेम बाबिस्ना में विश्वास में प्रार्थना में लगी रही। लेकिन उसी वक्त पापा जी जब प्रे कर रहे थे ना, तो पापा जी ने प्रोफेसी करी कि मैं किसी लेडीज को देख रहा हूँ जिसके गले में ना इन्फेक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसको ना ऐसे लग रहा है डिप्रेशन। ओके, उस प्रोफेसी को हम अपनी स्किन के ऊपर देखते हैं एक बार। राइट नाउ बड़ी हीलिंग को मैं देख रहा हूँ। गले के नीचे एक इन्फेक्शन को मैं देख रहा हूँ, औरत के जो खत्म नहीं हो रही, और आप बिल्कुल वरिड हो चुकी हैं, डिप्रेस हो चुकी हैं। खुदाबंद का आत्मा आपको छूकर चंगा कर रहा है। ओके, जब आपने प्रोफेसी को सुना तो क्या आपको फील हुआ गले में उस समय? ब्रदर उसके बाद जब मैं प्रोफेसी सुनी ना, तो मुझे इतनी ज्यादा गर्माहट महसूस हुई गले में, इतनी ज्यादा मुझे बिल्कुल दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता। पहले मुझे दर्द ज्यादा हो रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे दर्द नहीं महसूस हुआ। मैंने जब इस मेरे बात को सुना ना, प्रोफेसी को सुना, अपनी हीलिंग को रिसीव किया, उसके अंदर मैं आके पुलपट में आके गवाही दी। उसके बाद से आज 1 साल 4 महीने हो गए हैं, मैं पूरी तरह से बिल्कुल बच्ची तरह खा पी सकती हूँ। जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, परफेक्टिक हीलिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि जब परफेक्टिक होता है, परमेश्वर के दास के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा जाहिर करता है आपके केसेस को, आपकी बातों को,
आपको डिलीवर करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। और जैसा परमेश्वर के दास ने बोला कि आप उस बीमारी के कारण वरीड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, और ये सेम इस बहन के साथ हो रहा था। ये इतना ज्यादा डिप्रेस्ड थे, लेकिन जैसे ही प्रोफेसी हुई, वर्ड मिला, चेक किया, उसके बाद से 1 साल 4 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से आजाद है। तो तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते गए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मोना ब्रदर जी, कहाँ के आप रहने वाले हैं? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਈ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ। ओके 10 साल से आप मलेशिया में रह रहे थे। हाँ जी। 2021 में मलेशिया में ही आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। ओके उसके बाद क्या हुआ, क्या गवाही है आपकी, प्लीज आप बताएं खुद। 2021 ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। 2022 ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ weight ਓਵਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ weight ਘੱਟ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ਾयद ਮਾਂ ਬਣ ਸਕੂਗੀ। तो मलेशिया के कौन कौन से हॉस्पिटल में गए, कितने हॉस्पिटल में? ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੈਂ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੇਲ 'ਚ ਆ ਸੰਤੋਸ਼ਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਉੱਥੇ ਮਡੀਨਾ, ਇੱਕ ਨੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਤੇ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 3rd ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੇਬੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਡਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ मैं कहना नहीं, मैं खुद माँ बनना। फिर मेरी सिस्टर है और आप हमेशा वहाँ पे रोते रहते थे, डिप्रेस्ड हो चुके थे। हाँ जी। आपको लगता था कि शायद अभी मैं मां नहीं बन सकती। मैं नहीं बन सकती। इस वजह से आपके पारिवारिक माहौल कैसा बन गया था? मैं डिप्रेशन च रहना, पर मेरे हस्बैंड ने मैनू मतलब हौसला देना कि कोई गल नहीं, ਆਪਾਂ बेबी ले लवांगे। पर मैं कहना नहीं, मैं खुद माँ बनना चाहती हूँ। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी लास्ट में अगर साफ साफ ये बोल दिया था कि आप मतलब प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल है। हाँ जी। क्योंकि 3 मिसकैरेजेस आपके ऑलरेडी हो चुके थे। हाँ जी। उम्मीद खत्म हो चुकी थी। हाँ जी। ओके फिर क्या हुआ उसके बाद जब आपने उम्मीद पूरी तरह से फिर खत्म मैं कर दी? किते नहीं जाना, मैं घरे रहना। मेरी सिस्टर इत्थे आउंदी आ, 10 साल तो मतलब चर्च दे नाल जुड़ी हुई आ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਚਰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਚ ਲਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं इत्थे आई ते मैं ले हैंड करवाई मम्मा जी तो। ओके उस ले हैंड को देखते हैं एक बार। ओके आप ये बताएं कि जब लेहैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस टाइम मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई। मैं बहुत ज़्यादा उच्ची उच्ची रोंदी सी। मेरी सिस्टर ने कहा कि तू विश्वास कर, तू हुण प्रेगनेंट होगी। मैं 5वें महीने चली गई। 6वें महीने की 10 तरीक को मैं टेस्ट कराया, मैं पॉजिटिव आया मेरा टेस्ट, मैं भी बच्चा होने वाला सी। ओके क्योंकि प्रेगनेंसी आपको उससे पहले भी होती थी। हाँ जी। इस बार जब प्रेगनेंसी हुई तो क्या डिफरेंस था, क्या फर्क था उसमें? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 4ਥੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਦੱਸਤੀ ਸੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ विश्वास कर कुछ नहीं होता। ओके, जब प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाने के लिए आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर का क्या रिएक्शन था, क्या बोला उन्होंने? जब मैं प्रेग्नेंट टेस्ट करवाया मेरा वेट 1 क्विंटल 7 किलो सी। डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर कहते कि तू नेचुरल कंसीव नहीं कीता, तू IVF कराया। मैं क्या नहीं, मेरे नेचुरल कंसीव है। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर चौथे महीने मैनू आही प्रॉब्लम की अफेक्शन आ, बच्चे दा नहीं खुलन दा डर आ। मेरी सिस्टर ने कहा नहीं तू विश्वास कर। मैं 9 महीने मॉइंटीन ऑयल बरतिया। मैं प्रे सुनती सी, ऑनलाइन मैं प्रे करती भी सी। फिर 5 जनवरी मैनू बेबी बॉय ने ब्लेस किया प्रभु ने। खड़े होके तारीफ चाहिए इक्लेसिया इस गवाही के लिए। क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। मैं यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा, मैं राज याद राजे यसु नासरी दा बेटा, मैं राज याद राजे यसु नासरी दा बेटा। कमियां उड़ना ना ना, कमियां उड़ना ना ना। आप जब बेबी हो चुका, अभी लोग क्या बोलते फिर देख के, फैमिली वाले क्या बोलते अभी? मेरे हस्बैंड मतलब ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। मैं दिल बड़ा बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने। दिल बड़ा बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने। ये गवाही जो आप सुन रहे हैं, ये खुदावंद का हाथ है जो परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया। कितने साल के बाद हुआ ये बेबी 5 साल बाद और कितने मिसकैरेजेस हुए उसमें? 10 मिसकैरेज हुए मेरे। मलेशिया से भी इलाज करवाया, इंडिया हाँ से जी, भी हाँ डॉक्टर जी। चेंज किए। हाँ जी, जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है, जिन परिवारों के पास, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं ये कहनी कि इत्थे आओ, विश्वास करो प्रभु ते, प्रभु दऊगा, सामनू दऊगा, मैनू दिता सानू भी दऊगा। मैनू इस यसु गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जदों हो गए सी मैं गले अपने, मैं दिल बड़ा बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने। मैं दिल बड़ा बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने। क्योंकि कमियां उड़ना ना ना, कमियां उड़ना ना ना। मैं यहूदा देश यसु नासरी दा बेटा, मैं राज आदे राजे यसु नासरी दा बेटा, मैं ऊंची आवाज से गए हालेलुया। तारीफ करिए सबसे जोर से तालियों के साथ इन बड़े बड़े कामों के लिए जो परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में करता जा रहा है। आप इसी तरह से अपने स्थानों को ग्रहण करेंगे और भी कुछ हम टेस्टमनी सुनेंगे। नेक्स्ट टेस्टमनी गया बिहार चर्च ब्रांच से सिस्टर काजल कुमारी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। इनकी टेस्टमनी के 11 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके बाद ही ये बहन पागलपन के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए, जिसके कारण अपनी फैमिली को मारते थे, घर का सामान तोड़ फोड़ देते थे, घर से भाग जाते थे। लाइफ पूरी तरह से इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये गया बिहार चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं अपनी गवाही ऐसे दे रहा हूँ। 11 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। उसकी वजह से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। दुष्ट आत्मा मुझे गलत सामान बनाता था। उसकी वजह से मैं जब सुबह उठती थी तो मेरे शरीर में निशान रहता था। उसकी वजह से मैंने नशा भी करना शुरू कर दिया था। नशा में दारू का और भांग का नशा करती थी, सिगरेट का नशा करती थी
गुटखा का नशा करती थी, बीड़ी का नशा करती थी। उसकी वजह से मेरे मुंह में जख्म भी बनना शुरू हुआ, तो मुझे खाने में दिक्कत होती थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ठीक हो जाएगा, अगर नहीं ठीक होते कैंसर बढ़ सकता है। उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही रहती थी, मुझे मरने का ख्याल आता था। तो किसी भाई ने मुझे चर्च के बारे में बताया। जब चर्च आई तो मुझे एक दिन पापा जी ने प्रेयर करते तो मैंने अपने लिए रिसीव किया। प्रेयर के बाद मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। इसकी वजह से मेरे पापा को जो नशा करते तो उसको भी परमेश्वर ने आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का दास जी का धन्यवाद करता हूँ। सभी की जय हिंद। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। 20 अप्रैल 2025 को जब इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया तो सेम टाइम इन्हें ब्लड की वॉमिट आई और वो 11 साल पुराना जादू टोना इस बहन को छोड़ के गया, वो पागलपन इन्हें छोड़ के गया, वो नशे जो सालों से करते आ रहे थे, बीमारियां थी, वो इन्हें छोड़ के गई। और जिस दिन पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया था उस टाइम इनको ब्लड की वॉमिट आई, वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे ब्लड की वॉमिट आई उसी समय वो सालों पुराना डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के गई और आज बहन पूरी तरह से 1 साल से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं और उसी शांति के राजकुमार ने इस बहन को पागलपन से आजाद करके, बीमारियों से आजाद करके, नशे से आजाद करके छुटकारा दिया इनको और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते हैं। जैसे कि आप जानते कि जो परमेश्वर के दास ने स्पेशल उन लोगों के लिए प्रेयर की थी जो फाइनेंशियल अपने लिए आशीषों को चाहते थे, तो उस प्रेयर को एक बार हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते पहले। संडे के बाद इमीडिएट मंडे ही आता है और अब सबसे गर्म होते हैं संडे के दिन। मंडे मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूं और आपको मुझे टेस्टिमनी भेजनी है। जब आप कचहरियों में जाएंगे, आप जब अपने बॉस के सामने जाएंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स के संग काम करेंगे, आप कल मंडे फेवर देखेंगे बड़े वाला। आपके ऑफिस में अगर चुनाव होगा, 10 में से 1 को चुनने का वो एक आप होंगे कल। वो फाइनेंशियल फेवर में अगर किसी को चुना जाएगा तो वो फेवर आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो अगले ही दिन मंडे से टेस्टिमनीज, गवाहियां जो थी हमारे पास आनी शुरू हुई। सिस्टर रिम्पी ये अम्बाला के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके बेटे को इटली के वीजा के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने नेक्स्ट डे से ही इनके जीवन में कार्य करना शुरू किया। ये भाई, इनका नाम आकाशदीप है, ये फिलौर के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे कि मैंने संडे को प्रेयर को रिसीव किया जब परमेश्वर के दास ने जो प्रोफेटिकली बोला कि मंडे तुम ब्लेस होगे, और सेम मंडे जब सुबह इन्होंने चेक किया, परमेश्वर ने इनको इटली के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। नेक्स्ट डे से ही लोगों के जीवन में गवाहियां बननी शुरू हुई, परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू किया। सिस्टर संतोष कुमारी ये जलंधर के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको अपने नई प्रॉपर्टी के साथ, नई लैंड के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देके। जैसा ही प्रभु के दास ने बोला, जिस तरह पहले हमने गवाहियां सुनी थी कि परमेश्वर के दास ने बोला कि संडे आपने प्रेयर को रिसीव करना है और मंडे जो बहनें प्रेग्नेंट नहीं है आपने चेक करना है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। तो मंडे अगले दिन जब लोगों ने चेक किया, बहनों ने चेक किया और अगले हफ्ते वो अपनी गवाही देने के लिए चर्च में आए कि अगले ही दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया, शर्मिंदगी को दूर किया। और भी बहुत सारी हमारे पास टेस्टिमनीज हैं जो इस वक्त यहाँ नहीं मौजूद हैं। पास्टर विक्टर
गैब्रियल की टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया कि ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए थे और पिछले कई दिनों से इनका जो काम था वो टोटली बंद हो चुका था और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, नेक्स्ट डे मंडे इनको परमेश्वर का फेवर मिला और इनका जो काम बंद था, इनका जो फाइनेंस रुका हुआ था वो ओपन हो चुका है। परमेश्वर ने ब्लेस किया, तो तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। ब्रदर अरुण ये अबोहर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 21 जून 2026 की प्रेयर को जब इन्होंने रिसीव किया, मीटिंग के बाद प्रोफेटिक डिक्लेरेशन को इन्होंने ग्रहण किया और काफ़ी सालों से ये जहाँ पर जॉब कर रहे थे वहाँ पे जॉब में कोई इंक्रीमेंट, कोई प्रमोशन नहीं थी, लेकिन जब 21 तारीख को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और अगले ही दिन जब मंडे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में फेवर दिया और परमेश्वर ने इनको उसी जॉब में नई इंक्रीमेंट के साथ, नई प्रमोशन के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो तारीफ करें परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए। एक और टेस्टमनी है राकेश, ये जलंधर के रहने वाले। इनकी टेस्टमनी है कि इनके पास जॉब थी लेकिन उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं था, कोई भी उसमें इनको फाइनेंशियल कोई भी रिजल्ट अच्छा नजर नहीं आता था, लेकिन जब इन्होंने 21 जून की प्रेयर को रिसीव किया संडे वाले दिन, मंडे नेक्स्ट डे ही इनको जॉब में एक नया फेवर मिला, फाइनेंस में इंक्रीमेंट हुआ, परमेश्वर ने फाइनेंशियल रास्ते खोलिए। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोबनप्रीत ये अमृतसर के रहने वाले हैं। इनका भी लाइफ में 4 साल में पहली बार इनको ऐसा फेवर मिला क्योंकि काफ़ी सालों से ये एक ही जगह पर जॉब कर रहे थे। परमेश्वर ने अपना फेवर दिया, जॉब में प्रमोशन मिली, सैलरी में इंक्रीज हुए, यानी जो ये अमाउंट कमाते थे उनमें से कई गुना ज़्यादा इनकी जो सैलरी इंक्रीज हुई है। परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। शुभम की टेस्टमनी है कि हार्ट डिज़ायर थी इनकी कि इनके पास जो जैसा ये फेवर चाहते थे, जैसा ये काम चाहते थे कि मेरे पास ये वाली जॉब हो और इस जगह के ऊपर हो, और सचमुच परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और ये भाई पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया और परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में कार्य किया। सिमरनजीत इनकी टेस्टमनी है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले चला था क्योंकि इन्होंने फॉरेन जाने के लिए, इटली के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन हर बार काम में जो था वो डिले था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने संडे उस प्रेयर को रिसीव किया, अगले ही दिन परमेश्वर ने डिले खत्म किया और इटली में PR के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए। तो तालियां बजाएं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन टेस्टमनीज के लिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं परमेश्वर के दासों की बातों को, क्योंकि परमेश्वर जब आपसे बात करता है तो अपने दास, अपने नबी के द्वारा आपसे बात करते हैं। तो जब परमेश्वर के दास आपको कहें कि आपने कल टेस्ट करना है, कल आपने चेक करना है, कल आप फेवर को पाएंगे, आपको सिर्फ फेथ करना है और आप अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टमनीज के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? बलजीत कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नडा। ओके, इनकी टेस्टमनी है कि इनकी 2024 फरवरी महीने में आपकी बॉडी में लेफ्ट साइड में दर्द रहना शुरू हुआ। हाँ जी। ओके, धीरे धीरे करके क्या हुआ था आप खुद बताएं अपनी गवाही में। हौली हौली ना मेरी दर्द बढ़ती गई ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। 10 ਤੋਂ 12 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ कि प्रभु मैनू चंगा करेगा। क्योंकि जब आप डॉक्टर्स के पास गए, जब आपके टेस्ट हुए तो पता चला कि आपको लंग्स टीबी है, आपके फेफड़ों में टीबी का रोग हो गया है। हाँ जी। और इसी वजह से आपने बहुत डॉक्टर चेंज किए। हाँ जी। बहुत सारी दवाइयां खाई। हाँ जी ब्रदर। पर कोई भी फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं सी पैंदा। आपकी हालत कैसी थी? घर में काम कार कौन करता था? मैं एक कोई काम नहीं सी करदी हुंदी ते बेड ते पई रहना, सारी सारी रात जागदी रहना ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ। और जब आप घर पे प्रेयर को अटेंड करते रहे तो प्रभु ने आपको हील करना शुरू कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। और जब ये बहन चर्च में आए 2 जून 2024 की मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, उसको हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। बादशाह में तो मिले जलाल लाल, बादशाह में तो मिले जलाल लाल, ओ बादशाह में तो मिले जलाल लाल, बादशाह में तो मिले जलाल लाल। तो
आप बताएंगे जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई क्या हुआ उसके बाद? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं खाई आपने पहले? ਬਿਲकुल नहीं सर जी। और जब आपने चेक करवाया, डॉक्टर के पास गए, तो उसके बाद से कोई बीमारी नहीं है? हाँ जी हाँ जी। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? मैं 2 साल 1 महीना हो गया। और कोई दवाई नहीं खा रहे अभी आप? बिल्कुल नहीं सर। रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आ चुकी हाँ है? जी, हाँ जी। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और आज ये बहन उस लंग्स टीबी से पूरी रीति के साथ आज़ाद हो चुकी हैं और ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए, दवाइयाँ खाई, एक्सरेज करवाए, और पर दवाइयाँ खाने के बावजूद भी, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, कोई असर नहीं था उन चीज़ों का। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े तो एक स्पर्श, वो सामर्थी हाथ जब सिर के ऊपर आया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो बीमारी, वो रोग छोड़ के गया और आज ये बहन पूरी तरह से हील है। आज जितने जन यहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह परमेश्वर के दास ने बोला था कि आप अपनी रिपोर्ट्स को अपने साथ में लेके आएंगे, आपके हाथों में होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट्स जिसमें बीमारी है, जिसमें डॉक्टर ने रोग बताया। लेकिन जब आप प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो आज वो चंगियाइयाँ, वो गवाहियाँ आज आप लेके वापिस जाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि आज परमेश्वर यहाँ पे तैयार है आपको हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए। कितने जन तैयार हैं अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए? जिस तरह परमेश्वर यहाँ पे मेन हेड चर्च में बड़े काम करता है, ब्रांचेस में भी परमेश्वर का आत्मा आज लोगों को छुएगा। आप बड़ी गवाहियों को, बड़े छुटकारे आज आपके जीवन के अंदर प्रवेश होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए आपको हील करना कठिन नहीं है, आपको हील करना कोई बड़ा काम नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। हमने ऐसी गवाहियां सुनी, आपने लास्ट मीटिंग में, लास्ट संडे जो गवाही सुनी कि परमेश्वर ने किस तरह से डेथ बेड से उस बहन को उठाया, जिसको जो सांसें जिसकी बंद हो चुकी थी, डॉक्टर ने व्हाइट शीट जो चादर होती है उसके ऊपर डाल दी थी। घर में संस्कार की तैयारियां हो रही, रिश्तेदार घर पे आ चुके थे, सारा तैयारियां हो चुकी कि अभी बस संस्कार के लिए इसको लेके जाना है। लेकिन उसके रिलेटिव्स जो चर्च में आते थे, जस्ट अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए, उसकी बॉडी के ऊपर लगाया तो एकदम से ऊपर को उछली, वॉमिटिंग्स उसने की। उसके बाद डॉक्टर हैरान थे, स्टाफ वहां का डॉक्टर ये बोल रहे थे इट्स अ मिरेकल, ये मिरेकल है जो परमेश्वर ने इसके जीवन में किया। और वो बहन आज जीवित है। संडे वो हमारे बीच में थी, अपनी गवाही देके गई। तो परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। खुदावंद के बड़े कामों के लिए अद्भुत रीति के साथ जो परमेश्वर हील कर रहे लोगों को। इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी फतेहाबाद चर्च ब्रांच से सिस्टर लक्ष्मी की हमारे पास है। ये गवाही इनके बेटे की है, फतेहाबाद चर्च ब्रांच की टेस्टमनी। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जो मसा अपने दास, अपनी दासी को दिया है, वो मसा दूरी नहीं देखता, वो मसा सिर्फ आपके विश्वास को देखता है, वो मसा सिर्फ आपके फेथ को देखता है। और जब जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के भवन में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारी जिंदगियों में काम करता है। ये फतेहाबाद चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है। इस सिस्टर का नाम लक्ष्मी है और ये गवाही इनके बेटे की है। और आज ये फतेहाबाद चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। की मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं फतेहाबाद हरियाणा ब्रांच से अपने बेटे वरदान की गवाही देने जा रही हूँ। 4 महीने पहले मेरे बेटे की लेफ्ट साइड ई रिक्शे के नीचे आ गई। 1 घंटा बच्चे को होश नहीं आया, पूरी फैमिली परेशान थी और रो रही थी। बट हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। अभिषेक तेल अपने बेटे को लगाया, उसी टाइम बच्चे को होश आ गया। सिविल हॉस्पिटल, फतेहाबाद के सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने कहा 24 घंटे में अगर 24 घंटे के अंदर वोमिटिंग या चक्कर आए तो खतरे में है, अदरवाइज ठीक है। दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सेम कहा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन, एक्सरे करवाया। एक्सरे में आया कि लेफ्ट साइड की शोल्डर की हड्डी टूट कर नीचे खिसक गई। प्लास्टर किया गया। डॉक्टर ने कहा 1.5 महीना रेस्ट पर रहना होगा। सोजे से आ गई थी, हाथ नहीं ला सकता था, दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकता था, खाना भी मैं ही खिलाती थी। डॉक्टर ने कहा 1.5 महीने में हड्डी नहीं जुड़ती तो ऑपरेशन करना होगा। बट हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। लगातार ऑयल लगाते रहे। 29 मार्च को परमेश्वर के दास द्वारा की गई समर्पित प्रार्थना ग्रहण की। बच्चे की हीलिंग स्टार्ट हुई। 25 दिन में ही प्लास्टर उतरा, जो कि डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला था।
अब बच्चा ठीक है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के दासों दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जान तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आपने सुना है कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बच्चे को छुआ और आज इनका बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पूरी तरह से हील हो चुका है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर वंशों का परमेश्वर है। जब आप लगातार उसकी हजूरी के साथ बने रहते हैं, उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, तो फिर परमेश्वर आपको और आपके वंश को हमेशा संभाले रखता है, उसे बचाए रखता है। और आज जितने भी जन ऑनलाइन इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, ब्रांचेस में प्रार्थना को अटेंड करें, या जितने भी जन राइट नाउ इस जगह के ऊपर मौजूद हैं, जब आज आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो आज परमेश्वर बड़े काम आपकी जिंदगियों में करेगा, बड़ी गवाहियों को आप लेके जाएंगे। आप गरीबी की हालत में आए जरूर होंगे, लेकिन आप वैसे जाएंगे नहीं यीशु मसीह के नाम में। आप बीमार आए जरूर होंगे, लेकिन आज बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। इन बड़े बड़े छुटकारे, इन बड़ी बड़ी टेस्टमनीज के लिए थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मनप्रीत कौर जी, हरियाणा की। आपकी शादी कब हुई थी? 2018 में। ओके, मैरिज के बाद जब आपने बेबी का सोचा तो कंसीव नहीं हो पा रहा था आपको? हाँ जी। ओके, डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी। क्या बोला डॉक्टर्स ने, आप खुद बताएं अपनी गवाही में। डॉक्टर ये बोल रहे थे कि आपकी पानी वाली रसोली है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। फिर हमने दवाई खाई 3 साल, तो 3 साल बाद कोई आराम नहीं लगा, तो मैं चर्च में आने लगी। तो आपने एक ही डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाया या आपने चेंज किए? हाँ जी। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? हाँ जी। आपको फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मैं पहले से ही आती थी जी। ओके, और आप लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े रहे? हाँ जी। जब बेबी नहीं था उस समय मन में क्या आता था, मतलब क्या सोचते थे कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? ये रहता था कि मेरा हर टाइम दर्द में रहती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे बच्चा भी नहीं होगा, तो मैं सोचने में अकेली रहती थी। और उस समय उम्मीद पहले आपकी खत्म हो चुकी थी। हाँ जी। लेकिन आप जब चर्च के बारे में पता चला उसके बाद लगातार चर्च में आपने आना शुरू कर दिया। हाँ जी। और 4 दिसंबर 2022 की मीटिंग को जब ये अटेंड करे थे और उसमें जब प्रेयर हुई, इन्होंने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। आपने जब प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? मैं बेबी के साथ बहस हुई तो मैं मतलब जैसे मुझे मंथ नहीं आते तो मुझे, और उसके बाद परमेश्वर की सामने जब टच किया आपको, तो अगले महीने जब आपने चेक किया आपका टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया। हाँ और 5 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया और सुंदर हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं कि किस तरह से परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में कार्य किया और शर्मिंदगियां खत्म हुई है, परमेश्वर ने आशीषित किया। तो आज जितने जन ऐसे परिवार यहाँ पे मौजूद हैं, आज पूरे विश्वास के साथ आपने प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में लिखा कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। वो बांझ को बच्चों के आनंद करने वाली माता के रूप में खड़ा करता है, बनाता है। तो आज हमारा ये विश्वास है, वो श्राप, वो कर्स जो बांझपन के हैं या वो बीमारियां जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से बीच में प्रॉब्लम है, आज आप फ्री होके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी गवाही को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस बड़ी गवाही के लिए।
सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? चांदनी, कहाँ के आप रहने वाले हैं? बरनाला। 15 साल पहले एकदम से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। बताएं कैसे अटैक होने शुरू हुए, क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਛਾਈ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ओके। और जब ये इनके ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, घर का सामान उठाकर फेंक देना, अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करना। उसके बाद 2017 में जब इनकी शादी हुई, उसके बाद ये अटैक और ज़्यादा बढ़ने लग गए। हर वक्त इनको ऐसा लगता था कि कोई स्पिरिट, कोई साया है जो मेरे साथ चलता है। और हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज़्यादा क्लेश रहना शुरू हो चुका था। हमेशा मन में नेगेटिव ख्याल चलते रहते थे। और फिर इनको जब अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार चर्च में जब आना शुरू किया और परमेश्वर की प्रेजेंस में आए और प्रार्थनाओं को जब सुना, संडे जुलाई 2022 की मीटिंग को इन्होंने फर्स्ट टाइम आकर चर्च में अटेंड किया था। उस मीटिंग के बाद से हर तरह के जादू टोने से, दुष्टात्मा के प्रभाव से ये बहन पूरी रीति के साथ आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी है, तो परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से, तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर जो जादू टोने के अटैक के नीचे हैं, दुष्ट आत्मा के प्रभाव के नीचे हैं, या किसी ने कुछ खिलाया पिलाया, ऐसी चीजें हैं। आप जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। यानी आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आ गए, आज खुदावंद के घर में आ गए, वो आजादी, वो डिलीवरेंस आज अब लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। मैं पलाई सुदा कदे नहीं छड़ना, जमाना वैरी लख होवे। अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर क्यों। ओदे कदमा दे बंदगी हर एक पल में गुजारा, इबादत कर सजदे मैं किस्मत नू सवारा। मैं जो मंगना मिलेगा जी, कदी मैनू न शक